Hello and welcome to Gazette discussion for 25th June 2021. My name is Harsh Singh and today we will cover many interesting articles in this discussion. Before that, a quick understanding. Our discussion is divided in two videos. The first video is on the featured news of the day and the second video is on the rest of the Gazette discussion. For today, the featured news is on Reserve Bank of India's response to COVID-19 crisis. In this video, we will understand what is the reason Reserve Bank is being so proactive. What are the various mechanisms through which Reserve Bank has participated and what impacts it will have in the economy. This day in history is about the national emergency which was declared on 25th June back in the 1970s, right? Now, new snapshots. Three important updates that we have for you today are one on Antarctic Treaty, which had its 60 years now of initiation, right, of ratification. Then green hydrogen purchase, which has been made mandatory by the government for certain organizations. We will understand what is green hydrogen and certain important concepts related to it. The third article is about Great Barrier Reef and how UNESCO views it, right? Image of the day is on some skeleton remains of someone which were very similar to humans found in Israel. And then we have four important terms and concepts. The first one is Build Back a Better World. This is B3W initiative by G7 countries and what is India's response to it. AgriStack, development of agriculture through the use of technology, right? AgriStack. And then we have tax inspectors without borders, right? So these inspectors will be able to help, the Indian inspectors will be able to help Bhutan in its taxation norms. And then we have an update on National Maritime Heritage Complex. This complex is being developed at Lothal in Gujarat, right? At Lothal in Gujarat, very important location in historical context. The two editorials we have are on governance. The first one is on urban governance and the second one is on climate ready governance, right? All right. And then the case study on Sahara Sahel Food. This is an organization working in the Sahel region in Africa. The main idea of them is that they want to utilize the dry land agriculture crops or the trees which produce the native variety of food rather than the exotic species, for example rice, right? So the native variety will be promoted and this is what the case study is on. Now the first article that we discussed today is about the national emergency. क्यों? क्योंकि इसी दिन को 1975 में national emergency impose किया गया था अपने राष्ट्र पर, ठीक है? national emergency declare किया गया था article 352 of the Indian Constitution के अंडर, right? 352 to 360 are emergency provisions, उसमें 352 national emergency पर है. नेशनल इमरजेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वो तीन सर्कमस्टेंसेस में डिक्लेयर कर सकते हैं, जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो और आर्म्ड रिबेलियन हो. ये तीन क्राइटेरिया अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. पहले मेंशन था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसकी जगह पर लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस और बाकी के दोनों एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर. तो इंटरनल रिबेलियन जो था इसको जानबूझकर हटाया गया ताकि टर्म्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं, ताकि इमरजेंसी इंपोज करना इतना इजी ना रहे, ठीक है? क्योंकि इमरजेंसी जब इंपोज किया जाता है तो जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है और स्टेट के पास थोड़ा कम होता है, ठीक है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा बोलना है. पर जब इमरजेंसी इंपोज कर देते हैं तो स्टेट के पावर और कम हो जाते हैं, सेंटर एकदम यूनिटरी जैसा बिहेव करने लगता है और इसी टाइम के लिए ये डेमोक्रेसी जो होती है वो थोड़ी और कम हो जाती है. अपनी इंडिविजुअल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी कर्टेल हो जाते हैं लोगों के इंडिविजुअल राइट्स. एंड दैट इज द रीजन इमरजेंसी इज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट थिंग टू इंपोज. ये इमरजेंसी सचमुच में इमरजेंसी में ही इंपोज करना चाहिए. तो उस टाइम पर इमरजेंसी क्या हुई थी? उस टाइम पर इमरजेंसी ये हुई थी कि ऐसा कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता है उसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस की गई हैं, कुछ गड़बड़ की गई है इलेक्शन जीतने के लिए. तो लोगों ने, आंदोलनकारी ने आगे आना चालू कर दिया और थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये और बढ़ता गया. तो सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए टू स्टिफल द डिसेंट, दैट मींस इट सप्रेस्ड ऑल द डिसेंटिंग वॉइस. जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इट सप्रेस्ड देम, जेल भराया गया, ठीक है? इनकार्सरेशन, जेल भरा गया. और इसीलिए इस चीज को, इस टाइम को करीब करीब ऑलमोस्ट 2 साल, पौने 2 साल चला है. तो इस फेज को कहा जाता है इट इज अ डार्क फेज इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री, स्पेशली फॉर डेमोक्रेसी. ओके, तो ये है नेशनल इमरजेंसी, जून 25 को डिक्लेयर किया गया था 1975. राइट नाउ डे इन हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रेलेवेंस अपनी लाइफ में भी दिख जाता है. आंसर राइटिंग में,
आर्टिकल्स में, न्यूज में आ जाता है ये. सो बिकॉज इट कम्स इन द न्यूज, यूपीएससी that is how it thinks. UPSC will link many articles through history as well, right? 60, अब देखिए जैसे Antarctic treaty है, why is it in news? It is in news because it has been 60 years since it got ratified, right? So we will bring it to you news. Now once we bring it to you for as a news article, we will not only discuss Antarctic treaty क्या है, क्यों important है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे. तो यूपीएससी तो ऐसे ही देखता है ना, सिर्फ न्यूज नहीं देखता है, उसके आगे की पीछे की चीजें को देखता है. एंड दिस इज हाउ वी विल हेल्प यू हियर कवर दिस. सो ऑल इज रिक्वायर्ड इज फॉर यू टू बी रेगुलर. Be regular. We will cover all the articles one by one and none of the articles left out in the longer run. एक साल में अगर देखेंगे आपका तो यूपीएससी एग्जाम तो कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, एक साल में हो रहा है ना. तो एक साल में आप अगर फेज में देखेंगे तो आपका लार्जली हर कुछ कवर हो जाएगा इसमें. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आर्टिक ट्रीटी. Arctic treaty, it's been 60 years since it got instituted, since it got ratified. चालू हुआ था 1959 में ट्रीटी, ठीक है, बट उसको रेटिफाई सबने साइन कर दिया. 12 कंट्री ने साइन किया था उस टाइम पर. दे साइंड इन 1961. ओके, एंड नाउ दे आर 54 कंट्रीज इंक्लूडिंग आर इंडिया एज वेल. ठीक है, आर्टिक ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आर्टिक, एंटार्क्टिक, जहां भी आर्टिक बोला एंटार्क्टिक उसको कर लें. इट इज एंटार्क्टिक ट्रीटी. एंटार्क्टिक इज टुवर्ड्स द साउथ एंड आर्टिक इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट? सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए अभी वर्ल्ड को लार्जली एक्सप्लोर कर लिया गया है. ठीक है, जो एक्सट्रीम टेरेन है, जहां पर बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत ऑल्टीट्यूड पर है, वहां इंसान कम जाता है. एंटार्क्टिक भी कम जाता है, आर्टिक भी कम जाता है. बट बिकॉज रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें मेटल चाहिए, मिनरल चाहिए, फ्यूल चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, तो इंसान हर जगह खोजबीन कर रहा है. एंटार्क्टिक इज इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर रिसर्च. दिस इज द रीजन, राइट? सो अब एक्सप्लोरेशन इस तरीके से हो रही है कि यही सब बचे हैं जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पर आ रहे हैं. तो अब उसका इंपॉर्टेंट रीजन है कुछ, इसीलिए एक्सप्लोर करने के लिए भी कुछ कुछ टर्म्स बना दिए हैं. उन लोगों ने, कंट्रीज ने मिलकर कुछ टर्म्स बना दिए. इंपॉर्टेंट एक टर्म बनाया कि आप सिर्फ पीसफुल काम करेंगे वहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी. ठीक है, अनलाइक अदर प्लेसेस, सिर्फ पीसफुल वर्क. एंड सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. आपको पूरी छूट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, आप ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं, पर मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर एक्टिविटीज, कोई भी रेडियो एक्टिव डिस्पोजल वहां पे नहीं होगा. नथिंग अगेंस्ट द नेचर एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स. ओके, तो ये इस ट्रीटी में मेंशन किया गया है. ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी वहां पर अपना क्लेम नहीं कर पाएगा. अब जैसे एंटार्क्टिका है यहाँ पर, और यहाँ पर चाइना ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया, रेत खड़े कर करके आइलैंड बना दिया और बोला कि 200 नॉटिकल माइल्स, दिस इज माई एरिया एंड अ पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका ऑल्सो. दिस इज व्हाट पीपल डू, दिस इज व्हाट कंट्रीज डू, स्ट्रेटजीज. बट nobody can claim the sovereignty in this area. This is what the article also mentions and the treaty also mentions, right? So this is a special feature of this treaty. Also ये पूरे एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे ये ट्रीटी काम करता है ना. बहुत सारे ट्रीटीज पूरे कॉन्टिनेंट के लिए नहीं बने गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. आगे इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अंटार्कटिका अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है पहले से. क्यों? अब वहां पर जितना ग्लेशियर था पिघल रहे हैं, आइस थी पिघल रही है, तो इसलिए बहुत सारे एरिया जहां पर नहीं जा पाते थे, जहां पर जब बहुत ज्यादा बर्फ की परत थी, वो एक्सेसिबल हो गया एरिया. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि अब ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है वहां पर जाने के लिए, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है बेटर. अभी भी देखिए 54 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, सो एवरीबडी विल ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड गेट सम रिसोर्स आउट ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, अब माइनिंग हो रही है वहां पर क्योंकि रिसोर्सेज बाकी जगह कम हो गए हैं. सो दिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन दीज कंटेम्प्रेरी टाइम्स. और इसीलिए एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस अंटार्कटिका का वो ये है कि आप रॉस सी देखें. देयर इज वन रॉस सी इन अंटार्कटिका, राइट? दिस इज अंटार्कटिका एंड दिस इज रॉस सी हियर, ये रॉस सी. सो रॉस सी रीजन, this will be the largest marine protected area in the world. Largest marine protected area agreed by all the countries. सब नहीं मान रहे थे कि इसको बनाओ प्रोटेक्टेड एरिया. चाइना नहीं बोल रहा था, रशिया नहीं बोल रहा था. क्यों? क्योंकि अगर इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना दें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं कर पाएंगे ये लोग. रिसर्च, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, वहां पर अपना कब्जा करना और इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्च सेंटर बनाना नहीं कर पाएंगे. सो अदर कंट्रीज, सम कंट्रीज हैड रिफ्यूज्ड, है ना. तो इरादे उतने नेक नहीं थे, पाक नहीं थे, एंड दैट इज व्हाई there was some opposition in this. So therefore the idea of this treaty should be retained in spirit. This is the main crux of the conclusion that you should have. Okay, so इंडिया के 3 वहां पर रिसर्च स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती. सभी ऑपरेटिव नहीं है, हालांकि इंडिया ने 3 बार इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन बनाए थे. सो आइडिया क्या है? कंजर्व करना है उस जगह को, माइनिंग नहीं करानी है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. इसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे अपने आर्टिकल को जब भी आंसर इस पर लिखना होगा तो. All right, so we just covered Antarctic Treaty and why it is in news. 60 years since its inception.
ग्रीन हाइड्रोजन परचेज, अपना नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन परचेज। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरकार ने अभी बोला है कि बहुत सारी कंपनीज, इंपॉर्टेंट कंपनीज जो हैं, जो बल्क लेवल पर एनर्जी लेती हैं, कोयला जलाती हैं, पेट्रोलियम यूज करती हैं, गैस यूज करती हैं, तो उनको अपना ग्रीन हाइड्रोजन भी परचेज करना पड़ेगा एक सर्टेन लेवल तक, कम से कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इंडिया जब बात करता है कार्बन न्यूट्रलिटी की, है ना, रिड्यूसिंग एमिशंस की, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की, तो इंडिया को बहुत सारा एनर्जी यूज करना है रीन्यूएबल फ्यूल, और ग्रीन हाइड्रोजन एक रीन्यूएबल फ्यूल में आता है। ये कन्वेंशनल फ्यूल जो है, कार्बन और जो कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं, मीथेन एक्सेट्रा, इनमें नहीं आता है, और इसीलिए एमिशंस इसके कम होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हैज सेड कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जैसे फर्टिलाइजर है, रिफाइनरीज हैं, दे हैव टू मैंडेटरली परचेज अ सर्टेन percentage of their energy as green hydrogen. If they don't purchase, they will be penalized. If they purchase, they will be given a certificate, RE certificate for that. So अगर आप नहीं उसको एनर्जी को परचेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऑफसेट करिए। ऑफसेट मतलब कि आप सर्टिफिकेट खरीद लीजिए, जो दूसरा इंसान अगर उसको यूज कर रहा है, आप सर्टिफिकेट से उसको खरीद लीजिए। ठीक है, अगर एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं भी कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी गवर्नमेंट इज सेइंग, अगर आप पॉल्यूशन करते हैं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, और ब्लू हाइड्रोजन क्या है। ये तीन अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन मिक्सिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर एंड एनर्जी। तो वाटर बाय प्रोडक्ट हो गया, पर ये हाइड्रोजन जो बनता है ना, इसको बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ज्यादा, हाइड्रोजन को बनाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी। सो दिस एनर्जी, दिस हाउ इज इट प्रोवाइडेड, and the mechanism वो that will distinguish between green, gray and blue hydrogen. For example, जो green hydrogen है वो बनता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से, तो इसमें आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये आपको ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करेंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस अगर यूज करेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्लीन रहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सेकेंड वाला है ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन में ये है कि अगर आप कन्वेंशनल एनर्जी यूज कर रहे हैं, अगर आप पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं एनर्जी देने के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? बाय प्रोडक्ट होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड सच ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रे हाइड्रोजन, जो अभी तक यूज होता आ रहा है। वी हैव बीन यूजिंग ग्रे हाइड्रोजन टिल नाउ, राइट। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? तो ब्लू हाइड्रोजन ये है कि वी विल बी यूजिंग कन्वेंशनल फ्यूल ओनली, कन्वेंशनल फ्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, पर जो इसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना, ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा, इसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। वी विल नॉट लेट इट गो टू द एनवायरमेंट। सीक्वेस्टर बोलते हैं, कार्बन कैप्चर बोलते हैं इसको। तो कार्बन कैप्चर अगर कर लिया तो ये पूरे सिस्टम को खराब, डर्टी नहीं करेगा, इसको बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हाइड्रोजन हो गए, इंपॉर्टेंट प्री एग्जाम के लिए नोट कर लें। तो इंडिया और ग्रीन हाइड्रोजन की बात क्या है? अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम ज्यादा यूज करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सो नेचुरली हमें इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे। पिछले फीचर आर्टिकल्स अगर आप देख रहे हैं स्नैपशॉट, तो आपको पता लगा होगा कि 80% से ज्यादा हम फ्यूल अपना इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमें पैसे ज्यादा लगते हैं, डॉलर ज्यादा लगते हैं, और अगर इंपोर्ट कम करते हैं तो इंटरनल इकोनॉमी में ही काम हो जाता है। ठीक है, और सेल्फ रिलायंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट हमने टारगेट भी दिए हैं कि हम अपना सिस्टम को ग्रीन एनर्जी करेंगे। ठीक है, रीन्यूएबल का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 175 गीगावाट बोला था 2020 तक करने का। ठीक है, तो सिमिलरली हम अपना 2030 का टारगेट है, 2030 तक, कि 821 गीगावाट में 450 रीन्यूएबल एनर्जी होगा। इसमें हाइड्रोजन का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल फ्यूल सेल जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उसमें यूज कर सकते हैं। स्पेस में जाएंगे तो भी ये हाइड्रोजन एनर्जी यूज होगी। तो बहुत जगह हाइड्रोजन एनर्जी यूज हो सकती है, और इंडिया उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स डेस्टिनेशन हो सकता है, और आने वाले टाइम में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। सो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ आल्सो फॉर इंडिया। सो इस आर्टिकल में हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है। हमने ये देखा कि हाइड्रोजन एनर्जी जो कंजम्पशन है वो सरकार उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, क्या स्टेप्स ले रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपडेट था। द थर्ड आर्टिकल इज ग्रेट बैरियर रीफ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड on the left side you see Great Barrier Reef, right? Such a beautiful place, nature's mystery in its own richness, right? Coral reefs, etc. And you see this is Australia,
और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत बड़ा रीफ, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो स्पेस से भी दिखता है, राइट, नेचुरल स्ट्रक्चर, नॉट मैन मेड बट नेचुरल स्ट्रक्चर जो स्पेस से दिखता है, और ये पहले था, पर ये भी ग्रेट बैरियर रीफ है। दिस इज द डेड कोरल रीफ्स, राइट, ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पर देखिए पूरा ये एरिया कैसे कन्वर्ट हो गया है, पूरा इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ वाइट कलर्ड पैच, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कोरल रीफ्स ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो राइट नाउ वी विल गेट इनटू व्हाट इज द न्यूज अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को ने बोला है कि ग्रेट बैरियर रीफ बहुत डेंजर में है, ठीक है। हमने अभी देखा इमेज में कैसे डेंजर में है, पूरा जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये डेंजर में है, ठीक है। तो ये यूनेस्को ने कहा है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोल रही है कि ये न्यूज जो आप बना रहे हैं ऐसा मत करें, ऐसा नहीं है, इतने डेंजर में नहीं है। तो पॉलिटिक्स अलग, पर जान लेते हैं कि ये है क्या पहले, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी ब्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिकॉज ऑफ इट बीइंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो बहुत लोग यहाँ पर टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स रहते हैं, जैसे डुगोंग, सी काऊ, टर्टल, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट और रेयर स्पीशीज है जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब यूनेस्को ने बोला कि ये डेंजर में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका वर्ल्ड हेरिटेज का जो टैग है वो हट भी सकता है इस कारण से, और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को हर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज सेइंग कि डेंजर में नहीं है, ठीक है, आप ऐसे मत बोले, बट रियलिटी यही है कि डेंजर में है, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव्स होते हैं ना, जो गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, वैसे मरीन हीट वेव्स भी होते हैं। सो मरीन हीट वेव्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत चल रहे हैं, ठीक है, और उस एरिया में भी चल रहे हैं। और अब क्या होता है कि इस एरिया में जो ये छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं ना, यहाँ पर दी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच लिव हियर, दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स, ठीक है, जैसे जूज़ैंथेले। अब ये कोरल जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो कैल्शियम का स्ट्रक्चर है कोरल फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये जूज़ैंथेले रहते हैं, ये एल्गी होते हैं, कलरफुल एल्गी, अलग अलग कलर जो दे रहे हैं ना, ये एल्गी रहते हैं, और ये खाना बनाते हैं। When they make food, they also eat food, but in symbiotic relationship, they give this food to organisms also. अब वहां पर sea anemone भी है, sea anemone एक मछली होती है, तो ये उनके साथ रहते हैं। वहां पर sea cucumber होता है, sea fishes होती हैं, ठीक है, sea snake होते हैं, then we have starfish, तो ये सब एक साथ वहां पर रहते हैं। पर अगर ये खाना बनाना बंद कर दें तो ये कौन खा पाएगा, वहां symbiotic relationship नहीं होगा, और खाना ये इनको देते हैं तो उसके बदले में इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं वो जानवर। तो दिस इज द symbiotic relationship। अब इशू ये है कि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा इस पूरे एरिया का, तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जूज़ैंथेले वहां से निकल जाते हैं कोरल रीफ से, दे कम आउट, दे इजेक्ट देमसेल्व्स आउट, दे कैन नॉट लिव, दे डाई, एंड व्हेन दे डाई द होल कोरल ब्लीचिंग थिंग इट हैपेंस। अब वो जब मर जाएंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो बाकी के प्लांट्स, बाकी के एनिमल जो रह सकते थे उन पर, उनका खाना लेते थे, उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते थे, क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यही हो रहा है, ये अंडमान में भी हो गया है। आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन दिस आल्सो, आई हैव सीन दिस आल्सो। कहीं पर जहां प्रिजर्व किया है वो ये है, ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, वहां पर ये है, और बाकी के जगह पर ये है ना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग वर्ल्ड अराउंड, एंड दिस इज हैपनिंग इन ग्रेट बैरियर रीफ आल्सो, एज आई एक्सप्लेन्ड। But Australia is saying no, it is not happening, please don't make this political, right? That is another issue. So Australia is saying, see, main contention with Australia is that it will have a lot of job loss because of tourism. The second thing is Australia में per capita consumption of carbon based fuel मतलब conventional fuel का ज्यादा है per capita consumption, इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में ओवरऑल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है फ्यूल का, कन्वेंशनल फ्यूल, बट ओवरऑल पर कैपिटा पर पर्सन कम है। ऑस्ट्रेलिया में पर कैपिटा ही बहुत ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर ट्रांजिशन करना है तो फिर पूरा एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा, इसमें जॉब लॉस भी होगा, बहुत इश्यूज होंगे ट्रांजिशन में, इतने पैसे लाने पड़ेंगे इस टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलिया इज अपोजिंग दिस, ठीक है, ये बोल के कि ग्रेट बैरियर में ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अब एक और पॉलिटिक्स ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में थोड़ा टसल चल रहा है। द टसल इज दिस, वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन। ऑस्ट्रेलिया वांट्स अ रिन्यूड लुक इनटू why where covid started and China is irked at it. China says कि मेरे पर क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। China on the other hand heads the UNESCO right now, it heads the UNESCO. So since China heads the UNESCO, China says कि चलो ग्रेट बैरियर रीफ को चेक करते हैं, आप लोग एनर्जी ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, उस जगह को गर्म कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस करा रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लग रहे हैं। सो दिस इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, नॉट फॉर यूपीएससी एग्जाम बट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग बिहाइंड दिस। यहीं पर पूरा इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। Image of the day. Image of the day is about ancient skeletal remains which have been found in Israel. Okay, now see, in this figure we will very quickly understand
देखिए यही होता है, जो भी न्यूज में आता है ना, सिर्फ न्यूज में जो आता है उसको जानना जरूरी नहीं है, वो न्यूज़पेपर में है, वो न्यूज़पेपर में तो है ही, सबको पढ़ रहे हैं, सबको ही पढ़ रहे हैं, वैसे कम क्वेश्चन आएंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट व्हाई एंड हाउ अगर वो हम समझ गए ना, तो फिर तो यूपीएससी विल नॉट बी एन इशू। और इसके लिए चाहिए क्यूरियस माइंड, दिमाग क्यूरियस होना चाहिए समझने के लिए, एंड देन वी विल लीड द वे। तो अब ये मैप में देखें, इजराइल कहां पर है, इजराइल यहां पर है, राइट। सो व्हेन इजराइल इज लोकेटेड हियर, so this acts as the center point, almost the center point between Europe and Asia। तो यहाँ पर बहुत सारे सिविलाइजेशन जो बने थे ना इस एरिया में, ये इस तरीके से माइग्रेट कर गए, यहाँ पे माइग्रेट कर गए, इधर से इधर भी चले गए, सेंट्रल एशिया और इस इजराइल वाले पार्ट से। तो इसीलिए ये वाला स्पीशीज जो मिला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस स्पीशीज will form the root of understanding the connection between this and this area। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी कोई पढ़ता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहले जो इंसान था आज से 1 मिलियन 2 मिलियन ईयर्स पहले, वो ह्यूमंस भी नहीं थे, दे वर नॉट ह्यूमंस, दे वर नॉट होमो सेपियंस सेपियंस। तो उनका जो चेहरा जो था ना, ये अगर सर है तो सर छोटा था और उनका मुंह वाला पार्ट ज्यादा बड़ा था, इस तरीके से एप्स। एंड लेटर व्हाट हैपेंड, सर बड़ा हो गया और मुंह थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो दिमाग की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, जो माइंड वाला कैपेसिटी था, जहां पर ग्रे मैटर प्रिजर्व करते हैं, ब्रेन होता है, मेमोरी होती है, वो कम था। तो वो बंदर जैसा ज्यादा थे, मेमोरी पावर कम थी, बट थिंकिंग ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा है और मुंह वाला पार्ट छोटा है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी की पार्ट है, पर हमें जानना जरूरी है। अब यही अननोन स्पीशीज जो आया है ना, ये एक चेन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी स्पीशीज से बाद में निएंडरथल्स भी फॉर्म हुए थे यूरोप में, ठीक है। ऑल्सो ये जो स्पीशीज थी इतनी स्मार्ट थी कि आज के जो स्टोन टूल्स यूज करते हैं, मॉडर्न मैन जो यूज करता था, वो भी उसी टाइप के स्टोन टूल्स यूज करते थे। मतलब कि ये लोग स्मार्ट तो थे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन दिस आर्टिकल। कहां मिला है? इजराइल में मिला है। व्हाट इज द नेम? इसका नाम रखा गया है नेशर रैमला होमोटाइप, ठीक है। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, पूछ देते हैं ये प्री एग्जाम में कि रेशन नामरा किस चीज से रिलेटेड है, या ये किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिला है, ओके। ऑल्सो ये जो स्टोन टूल्स हैं, ये कैसे उन्होंने पास किया अगले जनरेशन में अपने बच्चों और बच्चों को? रिटन लैंग्वेज तो था नहीं तब, तो ओरल तरीके से पास किया, ठीक है। विजुअल से देख कर पास किया, ठीक है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस थी। दिस इज द इमेज ऑफ द डे, इंटरेस्टिंग वन, ओके। आई होप दैट यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट वी डू, बिकॉज सिर्फ कन्वेंशनल तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं पढ़ाने का, इमेजेस के थ्रू इंटरेस्टिंग इमेज ऑफ द डे, दिस डे इन हिस्ट्री भी यूज करते हैं। सो काइंडली गिव अस फीडबैक, क्या ये तरीका ठीक है? काइंडली गिव अस इनपुट्स थ्रू thumbs up, thumbs down, whatever suits you, है ना। give us feedback on how we can improve. See, every organization runs, and what do we do through this initiative? We are imparting free education to all of you, but along with this we also expect something in return. What do we expect? As an organization we expect that Edukemy's name will be listed somewhere. तो आप इसको शेयर करें, आर्टिकल को प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबका भला होगा इसमें। ज्ञान कभी भी सीमित रखने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। So please spread this initiative. I take efforts, the whole team here takes efforts, a lot of passion and effort to ensure that a lot of beautiful information is passed on. So kindly please participate and please share this initiative with others as well. Now build back better, important term and concept. Now build back better initiative is an initiative of the developed countries apart from China. China का अपना BRI है, Belt and Road Initiative, right? 2013-14 से स्टार्ट हुआ है, मल्टी $1 trillion इनिशिएटिव थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितने सारे कॉरिडोर्स और यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े देश कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें। सो व्हाट दे आर डूइंग इज थ्रू G7 दे सेड कि ठीक है, अब कोविड के कारण बहुत क्राइसिस हो गई है, वी विल इनिशिएट एवरीथिंग, वी विल कलेक्ट फंड्स एंड वी विल बिल्ड द वर्ल्ड अगेन इन अ बेटर वे। बट अब इंडिया इस पे कमेंट कर रहा है कि ऐसा ना करें कि चाइना के जैसे ही आप प्रेडेटरी पॉलिसी लगाएं और बर्डन करा दें। ऐसा ना करें कि लोन दें लेकिन लोन के टर्म्स इतने स्ट्रिक्ट कर दें कि पैसा ना वापस कर पाए। तो हियर इज द इमेज, G7, राइट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एंड देन यहीं पर बॉम्ब फट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज इनिशिएटिव ऑफ G7, दिस इज द कॉशन कि इंक्रीजिंग डेट नहीं होना चाहिए, BRI जैसे काम ना करें, राइट। सो आइडिया इज टू हेल्प इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, increasing digital technology and gender equity, right? So this is why Build Back Better World initiative has been in news. All right, okay. The next term in use is AgriStack. Now the government always wanted that agricultural field be equipped with technology. तो अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक पैक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि 100 गांव में वो लोग एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस ये लगाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प से।
ये क्या इनिशिएटिव है? इसमें क्या करेंगे कि जो फार्मर है उसके पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके फील्ड का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और कितना प्रोडक्शन होता है एक साल में, कितनी प्रोडक्टिविटी है, और इन सब चीजों को ऑनलाइन डाल देंगे। ऑनलाइन डालने के बाद उनको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि उनको क्रेडिट इजीली मिलेगा, उनको लोन अगर चाहिए तो इजीली मिलेगा, ठीक है। उनको तुरंत बताया जाएगा कि मार्केटिंग आप कैसे करें इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी, अगर प्राइस पंजाब का फार्मर है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, वहां पर कम रेट मिल रहे हैं, तो प्राइस डिस्कवरी के थ्रू उनको पता लगेगा कि अच्छा मध्य प्रदेश में अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो तुरंत मध्य प्रदेश में ये बेच सकते हैं अपने सामान को। तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का फायदा है। इसमें इश्यूज भी हैं, इश्यूज कंसर्न्स रेज किए हैं फार्मर ने कि हमारी सिक्योरिटी का क्या, हमारी डेटा प्राइवेसी का क्या, हमारी पर्सनल प्राइवेसी का क्या। तो ये सारी चीजों को भी कंसर्न में लेकर ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। बट अभी ये माइक्रोसॉफ्ट को लेकर ये टेक्नोलॉजी आई है, इसका नाम है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, ठीक है। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। इसमें हर फार्मर को एक आईडी दी जाएगी, ठीक है, और जिसके तरीके से उससे ये पूरा डेटा सर्विस इसके साथ लिंक किया जाएगा। तो इसको बोलेंगे डिजिटल डेटाबेस एंड टेक्नोलॉजी लिंकेज थ्रू ऑनलाइन मीडियम, ठीक है। प्रिसाइज टारगेटिंग, सब्सिडीज, सर्विसेज, पॉलिसीज, ये सब फार्मर को पास की जाएंगी इस ऑनलाइन मेथड से। ओके, नेक्स्ट जाने से पहले AgriStack याद रखें। थर्ड वन इज टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। सो in this initiative, the two important organizations, UNDP and OECD, they have come together so that international organizations, countries can help each other bettering their tax norms. अब भूटान में क्या है कि बहुत सारा उनके पास कैपेसिटी नहीं है टैक्सेशन का, तो इंडिया इज गोइंग टू हेल्प थ्रू दिस इनिशिएटिव। इंडिया इज गोइंग टू हेल्प भूटान टू हैव बेटर टेक्निकल नो हाउ। बहुत चीजें जानने को मिल जाएगी भूटान को थ्रू दिस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम, ठीक है। सो इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसे करना है और ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे करनी है। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? तो ट्रांसफर प्राइसिंग में ये होता है कि जैसे एक कंपनी ये है और उसी कंपनी का ये दूसरा पार्ट है। अगर ये बड़ी कंपनी है, सी और C1 C2, ये बड़ी कंपनी है, उसी के दो पार्ट है C1 C2। अब C1 बनाती है टायर और C2 बनाती है गाड़ी, और ये टायर यहां से यूज करती है। तो अब C1 क्या करेगा? टायर इसको बेचेगा और C2 प्रोडक्ट बेचेगा। अब C1 इसको कम रेट पर बेच रहा है टायर, तो इसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। C1 ज्यादा रेट पे बेच रहा है टायर, तो इसको प्रॉफिट कम होगा, C1 को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस पूरे प्रोसीजर में कैसे टैक्सेशन होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, सो और इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन लगा देंगे तो और तड़का लग गया, मतलब कि और कॉम्प्लिकेट हो गया सिस्टम। तो कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ रही हैं तो इसीलिए इंडिया जैसा कंट्री भूटान को मदद करेगा। ये रहा भूटान का झंडा, ये रहा इंडिया का झंडा। ओके, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। इसमें यह बताया गया है कि लोथल एक इंपॉर्टेंट जगह है, लोथल गुजरात में है, यहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। यहां पर रिक्रिएट करा जाएगा लोथल एंशिएंट सिटी जो था लोथल का, उसको रिक्रिएट भी करा जाएगा। यहां पर वाटर पार्क भी होगा, रिक्रिएशन फैसिलिटीज होंगी, इंटरनेशनल टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हर एवेन्यू होगा। तो ये शहर ज्यादा दूर नहीं है अहमदाबाद से, अराउंड 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद, नियर द गल्फ ऑफ खंबत कोस्ट एंड in the Kathiawar Peninsula area, very near to that. I will just show you the map. और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए वर्ल्ड टूरिज्म साइट डिक्लेयर की जाएगी। ओके, तो ये रहा लोथल। दिस इज व्हाट लोथल इज अबाउट, वेरी क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत एरिया, राइट। एंड दिस इज अहमदाबाद, दिस इज लोथल, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट 5000 years बैक। यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्यों? क्योंकि देखिए, ये देखिए ग्रिड पैटर्न में कितने सुंदर से घर बनाए गए हैं, एकदम रेक्टेंगुलर सिमेट्री में, राइट। सो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द होल सिटी हियर, राइट। दिस इज लोथल एंड हियर द भागोवा रिवर अभी भी फ्लो करती है यहाँ से, भागोवा रिवर। तो इसके अराउंड ये सिटी बनाया गया था, डॉकयार्ड भी था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। यहाँ के आर्टिकल्स वर्ल्ड ओवर पॉपुलर थे, जैसे कि यहाँ पर सील्स होंगे, वो पॉपुलर थे। यहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पॉपुलर थे, एंड देयरफॉर दिस सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ के जैसे टेराकोटा हुआ, पॉटरी हुई। टेराकोटा क्या होता है? छोटे छोटे मिट्टी से आप प्रोडक्ट्स बना दें, उसको फिर क्ले से, एंड देन यू बर्न इट। तो बर्न करने के बाद वो रेड कलर हो जाएगा एकदम, तो ये टेराकोटा प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ के पत्थर इंपॉर्टेंट थे, ज्वेलरी इंपॉर्टेंट थी, तो ये सब चीजें यहाँ की इंपॉर्टेंट थी। इस पूरे शहर को रिकंस्ट्रक्ट करके रिक्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, लोथल सिटी को इंपॉर्टेंट। ओके, इतना सरकार पैसा लगा रही है तो पूछ भी सकते हैं कल्चर के नाम पर, ठीक है। ओके, एडिटोरियल्स ऑफ द डे। पहला एडिटोरियल है कि हाउ द गवर्नमेंट
मिशन अर्बन गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। सो इट्स द आर्टिकल स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स अर्बन एरियाज के लिए 3 है। एक आवास योजना अर्बन, एक अमृत मतलब कि अटल ये मिशन है रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जो अर्बन एरियाज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, अब वाटर दे रहे हैं कि नहीं, बिजली दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सड़क दे रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चीजों को इनिशिएट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए अमृत था, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन मतलब सिटी पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करे। और प्रधानमंत्री आवास योजना इज फॉर प्रोवाइडिंग हाउसेस, राइट, अर्बन हाउसेस टू ऑल पीपल, ठीक है, लो रेट हाउसेस टू ऑल द पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी अर्बन एरियाज में रहने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ द आर्टिकल स्टार्ट्स। आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया गवर्नमेंट ने। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब यहाँ पर आर्टिकल ने बोला है कि ऑफिसर तो सही वही है, आईएएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम कर रहा है वही तो स्टेट गवर्नमेंट में था पहले, तो इसीलिए आप उन पे ट्रस्ट करें। तो स्टेट को भी ऑटोनॉमी दी गई है, पहली चीज तो ये यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। फिर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑल दिस सेटअप, ठीक है। उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे जियो टैगिंग की यूज की गई है। जियो टैगिंग का मतलब क्या कि आप तुरंत जो भी स्टेटस है आप उसको क्लिक करें फोटोग्राफ में और अपलोड कर दें, तो उसका तुरंत सुपरविजन मॉनिटरिंग हो जाता है, ठीक है। देन आर्टिकल सेज दैट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू फंडिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है, बॉन्ड्स जैसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इससे तुरंत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बॉन्ड से, म्यूनिसिपल बॉन्ड से क्या होता है, दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कैन एक्ट एज प्राइवेट एंटिटीज which can have their own bond system, मतलब वो भी लोन गैदर कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फंडिंग मैकेनिज्म्स, राइट, which have gotten initiated। फिर it says that रेरा जैसा इंपॉर्टेंट एक्ट आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, एंड देन मॉडल टेनेंसी एक्ट आया। मॉडर्न टेनेंसी हमने खुद पढ़ा है 10 दिनों पहले, वी हैव स्टडीड दिस इन द फीचर्ड आर्टिकल। तो इन सब से क्या हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग इन अर्बन एरियाज हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप को समराइज किया गया है इस आर्टिकल में, एंड द आर्टिकल अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। हम आंसर्स में डालेंगे अमृत, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, वी विल इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, किस तरीके से जियो टैगिंग करते हैं, फंडिंग के 2 स्टेप्स मैंने अभी बताए वो हम यूज करेंगे आर्टिकल में, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल आंसर ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। अगर बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अपने आप आपके वर्ड्स में आएगा, आंसर्स में आएगा, पर अभी इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखें। ओके, सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट क्लाइमेट रेडी गवर्नेंस सिस्टम। ओके, तो यहाँ क्लाइमेट एम्फेसिस की गई है सरकार के रेडीनेस के लिए। आर्टिकल में बोला गया है कि गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लाइमेट रेडी होने के लिए। ओके, आर्टिकल में कहा गया है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात होती है, नेट जीरो की बात होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड ओवर क्या किया जा रहा है, जैसे इंडिया में तो एक मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, राइट। इन यूके इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, जो कि हर कुछ बताता है क्या कैसे करना है, और फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं जो ये काम करती हैं। अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट ये काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑर्डर्स पास ऑन करती है। सिमिलर विद चाइना में है कि पेनल्टी भी इंपोज करते हैं, अगर आप ठीक से काम नहीं करें क्लाइमेट को न्यूट्रल करने में तो आपको पेनल्टी भी इंपोज करेगी। तो इंडिया में क्या होना चाहिए, आर्टिकल सेज दैट इन इंडिया वी शुड हैव एन इंपॉर्टेंट commission, an independent commission which should be able to oversee and suggest important steps, right? And then associated with this should be all the private public bodies, right? NGOs attached to it, the ministry attached to it for coordination of the work, right? So India में federal organization होना चाहिए। देखिए इंडिया में कितने सारे रोल प्लेयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, यूनियन में स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को छोड़ करके मिनिस्ट्री है, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइवेट बॉडीज हैं, इंडिविजुअल लोग हैं। अब देखिए इंडिया में एक और चीज है, इंडिया में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो अब क्या हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। डिस्पैरिटी भी बहुत है, क्या जो अमीर आदमी है प्राइवेट व्हीकल में प्राइवेट जाएगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा? तो ये सारे को लेने के लिए एक इसीलिए कमीशन बनाना चाहिए जो इन सब चीजों पे इंडिपेंडेंटली रिसर्च करे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स ऑफ। Okay, moving ahead to the last section and the case study of the day. Now, case study of the day is about a place in Sahara, near Sahara. This is the Sahel area. Now, this is just transition from Sahara desert to the grasslands,
right? The tropical grassland, savannas. So this is the Sahel area. Of course, it has to be a dry area. This area is also impacted because of many other issues. For example, extremism. For example, lot of terrorism activities, right? This area is impacted because of desertification. This is impacted through shortage of water crisis, right? There's hardly any funding, hardly any infrastructure. So lot of issues are there. अब यहाँ पर कैसे यहाँ पर बहुत अच्छे काम होते हैं वो देख रहे हैं हम. तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, सहारा साहेल फूड्स. ओके, दिस इज स्टार्टेड बाय जोसेफ गार्वी इन 2014. अब क्या है इस एरिया में, यहाँ पर सबसे पहले ना कॉलोनियलिस्ट थे, मतलब अंग्रेज भी आए थे यहाँ पर, यूरोपियन आए थे. जब वो आए तो उन्होंने बोला हम ये खाते हैं, यहाँ पर ये उपजाया जाए. तो वहां पर जो नेचुरल फूड थे, वहां पे एक्चुअल जो लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, जो लोकल लोग थे, वो पेड़ से बेर तोड़कर खाते थे, नट्स खाते थे, ठीक है. वो सीड्स, छोटे छोटे गम्स, लीव्स, पत्ते वत्ते, ये सब खाते थे. यूरोपियंस ने बोला ये सब नहीं, आप वो खाएंगे और हम वो खाएंगे जो हम बताएंगे. तो दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ इंडिया का ही. पंजाब में राइस तो कल्टिवेट होता नहीं था पहले, वीट होता था, बार्ली होता था, बाजरा होता था. अब वहां पर आप बोलेंगे कि चावल उगाओ, तो वहां पर भी उसी तरीके से रेत रेगिस्तान में बोला चावल उगाओ. तो वो चावल उगाया, इसमें बहुत सारा एनर्जी लगा, बहुत सारा पानी लगा, बहुत रिसोर्सेज लगे, पैसे भी लगे और रिटर्न्स कम मिले. तो वहां पर जो नेचुरल फ्रूट थे, वहां पर नेचुरल नेचर के थे, उनको कम उगाया गया बाद में, और ये सब चीजों को ज्यादा उगाया गया. इसीलिए और गरीबी फैल गई. ठीक है, खाने की और किल्लत और दिक्कत. तो इन्होंने क्या किया, जोसेफ भाई साहब ने क्या किया, 2014 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, ये देखकर कि यहाँ जो हमारे जो नेचुरल फल हैं, नेचुरल पेड़ के पौधे हैं और जो बेरीज नट्स हैं, ये तो बड़े अच्छे उगते हैं, ये इसमें न्यूट्रिशन भी है, हम खा भी सकते हैं, हमारे खाने भूख की भी दिक्कत नहीं होगी और नेचर दे पाएगा खाना. और यहाँ इतनी औरतें हैं, ये लोग तो कुछ यही कलेक्ट करते हैं, हंटर गैदरर्स थे ये लोग, तो ये स्पेशलाइज करते हैं इन सब चीजों में. तो इन्होंने ये चालू कराया और 7-8 साल में ऑर्गेनाइजेशन हजारों फीमेल से सामान सोर्स कर रहा है, वो उनसे ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है और बेच रहा है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप में भी बिक रहा है. ये यूरोप बहुत सारे ऐसे सामान को नहीं खरीदता है जब तक टेस्ट नहीं किया जाए, लेकिन इनफॉर्मली तो यूरोपियंस खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑन दिस, कि कैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, कैसे इंडिजिनस नॉलेज, कैसे उस जगह का अपना नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, लोकल ट्रेडिशन के लिए. कैसे एक क्लाइमेट का रेजिलियंस किस तरीके से होता है, ठीक है, वाइल्ड वैरायटी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और कैसे वो लोकल कल्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है. उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट आ गई इसके कारण, उस जगह में हजारों लोग अब मदद कर रहे हैं इस काम में. फूड प्रोसेसिंग को भी बहुत वहां पर इजाफा मिला है. ओके, आउटकम क्या हुआ है, देखिए, एम्पावर में हो गए हैं लोग यहाँ के. अब लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बन गए वहां पर, कि आपस में हम मदद करते हैं और एक दूसरे को मदद करके सामान इकट्ठा करके हम प्रोसेस में, इंडस्ट्री में डालेंगे. ठीक है, तो देखिए अब कैसे यू लिंक करेंगे, मैंने तो कहानी बताई, लेकिन यूपीएससी से कैसे लिंक करेंगे इसको. द क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट ईयर वाज व्हिच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. सी, सो ये तो बहुत जनरल स्टडीज की बातें हैं, बस यही है कि केस स्टडी के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप इसको जो केस स्टडी है इसको याद रखें. रिमेंबर द नेम सहारा साहेल फूड्स इन द साहेल एरिया ऑफ अफ्रीका. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको दिस वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का एक अवार्ड है, उसमें फाइनलिस्ट था ये. So that is why we have put this in the case study today. All right. So thank you for viewing. Keep viewing and keep sharing your opinions. Thank you.